Hello students, on the last turn we have defined the term fungus, that is eukaryotic, achlorophyllus, heterotrophic, organisms that may be uni to multicellular. This is the definition, that is, these are eukaryotic, achlorophyllus, heterotrophic organisms and that may be unicellular to multicellular. यूनिसेलुलर के केस में हमने देखा था, क्या था एग्जाम्पल? फॉर यूनिसेलुलर अपना हम लोग एग्जाम्पल लेके चले थे ईस्ट, एंड फॉर मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल था ईस्ट, मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल था आपका पक्सीनिया, पक्सीनिया एक जनरा है फ्रॉम बेसिडियोमाइसेट्स, मोर्शिला, agaricus, etc. So for the unicellular we are having the yeast, and for the multicellular we are having Paccinia, Moschella and Agaricus. Now we have also discussed that if the somatic body is unicellular, no problem. But if multicellular, then how it looks like? So in case of multicellular, the somatic body is filamentous. And this filament is known as hypha 1. This gets aggregated to form more massive mass, that is hyphae at the second level, and at the third level this gets highly aggregated to form more massive mass, that is your mycelium. So coming back to the multicellular body where it is filamentous in nature, the first level of filament is hypha, singular. This gets aggregated in a more massive mass, that is hyphae, then ultimate mass mycelium. Now this mycelium in case of multicellular fungi actually is the ultimate phase that is responsible for the final phase of the somatic body that gives its final look, as in case of agaricus. तो हमने क्या समझा अभी तक? हमने ये समझा कि फंजाई आपका क्या है? फंजाई आपका यूकैरियोटिक है, यानी अगर हम एक सेल देखेंगे तो इसका जो सेल है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल के साथ होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट, और ये हेटरोट्रॉफिक होता है। हेटरोट्रॉफिक की इसका मतलब कि ये है कि ये जो है आप अपना भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है, और ये एक क्लोरोफिलस होता है,
ए क्लोरोफिलस, इसका मतलब कि इट लैक्स क्लोरोफिल, इसमें ग्रीन कलर नहीं होता। तो नेचर में जो फंजाई है वो आपकी किस कलर की होगी? येलो कलर की होगी, पेल येलो कलर की होगी, क्रीम कलर की होगी, ब्लैकिश कलर की होगी। ओके, और ये क्या है? यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर है, ये इसकी डेफिनेशन है। ये हमने यहाँ तक देख लिया। और हमने आपको लास्ट टर्न पे ये भी बताया था कि यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर का ओरिजिन कैसे हुआ होगा। तो यूनिसेलुलर से हमने सेलुलर ये देखा था कि कैसे जो सेल होती है लीनियरली 1 2 3 4 सेल्स आपकी लैटरली जुड़ करके आपकी बनाती है कौन से स्ट्रक्चर? योर हाइफा। नाउ दिस हाइफा जो कि आपका पहला लेवल है मल्टी सेलुलर के केस में ऑर्गेनाइजेशन का हाइफा, ये आपका ऐसा दिखेगा। ओके, नाउ दिस हाइफा में बी आइदर septate means you see this filament or hypha, this is having 4 cells. Do we have any limitation of the cell? Yes, this is the rectangle shape blunt ended cell which is laterally linked with next cell, and the cell is limited up to a certain extent. Why this is so? Because there is a cross septum that divides the filament into cell like units. So this is called septum. So if this cross wall is present or causes the chambering of the filament or hypha of the mycelium, then the mycelium will be known as septate. The first case, say septate. Septate means presence of cross wall like structure in the hypha, which actually responsible for the chambering of the hypha into different chambers, and this hypha which is having chambers is known as septate. So this is the first category of the multicellular hypha where septum is present as a cross wall, and that causes the chambering of the hypha in different chambers. So the mycelium will be septate. On the contrary, on the other hand, the second mycelium is actually aseptate, where septum is absent. Aseptate mycelium, aseptate hypha, hyphae and mycelium, where there is no cross wall like structure or septum is present, and this mycelium will be, this hypha or hyphae or mycelium will be aseptate, and this is called actually cenocytic. तो एक चीज़ हमको क्लियर हो गई कि जो हाइफा है या हाइफी है या जो माइसिलियम है वो अपनी दो तरह की होगी। ये हाइफा आपका है, यहाँ पे अगर क्रॉस वॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हाइफा डिफरेंट चैम्बर्स में बट जा रहा है, और या फिर सेल लेटरली अरेंज होके 1 से 2, 2 से 4 और अपना इस तरह से नंबर बढ़ा के एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बना रही हैं, तो उस केस में जो हमारी हाइफा या हाइफी या माइसिलियम होगी वो कैसी होगी? सेप्टेट होगी। जबकि वो हाइफा, हाइफी या माइसिलियम जिसमें कि आपका सेप्टम नहीं प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे एसेप्टेट। और इस तरह की हाइफा, हाइफी या माइसिलियम को हम क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक। और ये आपका कुछ ऐसे दिखता है, यहाँ पे आपकी बहुत सारी न्यूक्लियाई सस्पेंडेड होती हैं एट अ पर्टिकुलर पोजीशन in the hypha like structure, and this mycelium will be cenocytic. So what is the structure that is responsible for the filamentous and septate body? It is a septum,
or cross wall like structure. So this hyphae or mycelium may be either septate or aseptate, that is cenocytic in the last case, where the nuclei are suspended at a particular point in the hyphae or mycelium. In case of septate mycelium, the chambers are monokaryotic, that is, only single nucleus is present per cell. But in case of hyphae or mycelium, that is cenocytic or aseptate, we are having many nuclei that are present at a particular point, and this hyphae or mycelium will be known as multikaryotic. So monokaryotic, multikaryotic. Okay, so now what is the function of this mycelium in case of multicellular organism? In case of multicellular organism or multicellular fungus, the mycelium gets organized to form the visible or ultimate form of the fungus plant body or somatic body. Mycelium is organized. Now we are talking about the organization of the mycelium. It means what? It means the fungus may be unicellular or multicellular, as I have told you. And if the plant body is multicellular, where we are having the mycelium as the final form of the fungus plant body that has been developed in a massive structure that we know as mycelium, is organized to form the final form of the somatic body that could seen in different structures, basically as fruiting body. Fruiting body, as in case of agaricus or Moschella. Now, why I am taking the example of agaricus and Moschella? Actually, both are looking like same, having a umbrella like structure and a stalk like structure at the bottom. So, what is the difference? Agaricus belongs to the class Basidiomycetes, while Moschella belongs to the Ascomycetes. Now, what these Ascomycetes and Basidiomycetes are? These are the different two classes of the fungi, and in the coming session we will get aware with the different classes of the fungi. तो अभी तक हमने क्या देखा बच्चों? फंजाई की हम बॉडी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बॉडी की बात कर रहे हैं. सोमैटिक बॉडी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम नेचर में जाएंगे, अपने अगल बगल देखेंगे, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि फंजाई की जो बॉडी है वो आपकी कैसी दिखती है. इसके पहले हमने आपको अगैरिकस का फ्रूटिंग बॉडी बना के दिखाया था, और टी ट्रंक्स पे ऐसे एरिया जो थोड़े से इग्नोर्ड होते हैं, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग रियली वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे ट्री ट्रंक्स में जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स नीचे ग्राउंड पे होते हैं, उन ओल्डर ट्री ट्रंक्स में आपके ब्रैकेट लाइक फंजाई होती है. वहाँ पे आपको देखने को मिलता है. या रेनी सीजन में आपका प्लांट्स के डेब्रिस जहाँ पे इकट्ठी होती हैं, या रोटिंग वुडन मास होता है, वहाँ पे आपका मशरूम जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और आप देखते हो कि बड़ा ब्यूटीफुल सा ब्लैकिश या क्रीमिश या ब्राउनिश आपका अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको आप जो है अगैरिकस या मशरूम बोलते हैं. तो किन केसेस में, किस सीज़न में हमको फंजाई देखने को मिल सकती है? ड्यूरिंग मॉइस्ट एंड ह्यूमिड कंडीशन. तो पूरे साल में हमको, अगर हम ये खोजना चाहें कि फंजाई हमको किस सीज़न में देखने को मिलेगी, तो उस कंडीशन में देखने को मिलेगी जब मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी नेचर में ज़्यादा हो. तो ऐसा कब देखने को मिलता है? ड्यूरिंग रेनी सीजन, वी आर हैविंग द हायर मॉइस्चर कंटेंट एंड ह्यूमिडिटी, वेयर वी आर हैविंग
द हायर चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ द फंजाई इन द नेचर। तो उस कंडीशन में आपकी जो फंजाई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कैसी है। फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था सैप्रोफिटिक होगा, या सेकेंड कैटेगरी है इसकी आपका पैरासिटिक होगा, एंड थर्ड कैटेगरी वी आर हैविंग सिम्बायोटिक। तो इतना अभी के डिस्कशन से हमको ये समझ में आया कि इसकी जो सोमैटिक बॉडी है भाई, या तो वो यूनिसेलुलर होगी तो हमको नेचर में नहीं दिखाई देगी, और मल्टी सेलुलर होगी। और मल्टी सेलुलर सोमैटिक बॉडी होने के लिए अगर उसने हाइफी माइसीलियम के फॉर्म में खुद को मैसिव फॉर्म में अगर कलेक्ट कर लिया है, तो जो मैसिव फॉर्म है, द थर्ड मैसिव फॉर्म दैट वी आर हैविंग द माइसीलियम, वो आपको नेचर में डिफरेंट मॉडिफिकेशंस माइसीलियम के रूप में दिखाई दे सकता है। सोमैटिक बॉडी यहाँ पे माइसीलियम you could see different modifications of mycelium. Example, rhizomorph modifications, first category, and the second category we are having the fruiting body. So in nature we could see the multicellular massive form of the fungi in the form of either as different modifications like rhizomorph और fruiting body. इस फंजाई को देखने के लिए पूरे साल में हमको फिर से देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो कि फेवर करती हैं फंजाई के ग्रोथ को। तो क्या है? हायर मॉइस्चर कंटेंट और ह्यूमिडिटी। हायर मॉइस्चर कंटेंट और ह्यूमिडिटी हमको कब पूरे साल में देखने को मिलता है? बारिश के दिनों में। बारिश के दिनों में अगर आपने अभी तक ध्यान दिया होगा तो अपने पिकल्स, मैं फिर बात करूँगी पिकल्स की, ये कहा जाता है कि आप उसको मॉइस्ट हैंड से मत टच करिए, खुला मत रखिए, वरना वो डिग्रेड होने लगेगा। उस पर आपकी वाइटिश कलर की कॉटनी ऐसे आपकी मैसिव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ जाएंगे आपके पिकल्स के ऊपर। सपोज दिस द पीस ऑफ द पिकल, यहाँ पे आपकी ऐसे कॉटनी स्ट्रक्चर आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपका पिकल है वो जार में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा चला गया, बाहर से ह्यूमिडिटी है ही है, उसकी वजह से आपके पिकल्स के ऊपर क्या हुआ? वाइट कलर का आपका कॉटनी ग्रोथ होने लगा। और वो क्या है? वो कुछ नहीं है, बस फंगस है। या फिर आप जो है ब्रेड को देखिए, ब्रेड के पीसेस आपके पुराने हो जाते हैं, आप उसका पैकेट खोल के बस छोड़ दीजिए अपने किचन में, और आपका रेनी सीजन है तो यहाँ पे आपको इस टाइप का वाइट कॉटनी या ब्लैकिश कॉटनी आपको मास देखने को मिलेगा। दैट इज़ ऑल्सो अवर फंगस। तो पिकल्स पे देखने को मिल सकता है, खुले हुए ब्रेड के पीसेस पे देखने को मिल सकता है। कब? जब कंडीशन आपकी मॉइस्ट होगी और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, और ये कंडीशन हमको देखने को मिलती है बारिश के दिनों में, जो कि नेचर में हमको डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे देखने को मिल जाएगा। तो पहली कैटेगरी हमने फंजाई की ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो अपना न्यूट्रिशन किन सोर्सेज से लेता है उसके बेसिस पे हमने 3 ग्रुप में इसको बांट दिया है। द फर्स्ट वन इज सैप्रोफिटिक। तो सैप्रोफिटिक का एग्जांपल हमने आपको डिस्कस किया, पिकल्स का डिग्रेड होना और उसका ख़राब होना, और ब्रेड के ऊपर जो पुरानी ब्रेड के पीसेस हैं वो अगर आप किचन में ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए तो उस पर जो वाइट कॉटनी ग्रोथ है वहाँ पे। अब ये बताइए, क्या अपना ये अचार जिंदा है या क्या ये अपना ब्रेड का पीस जिंदा है? ये दोनों के दोनों मरे हुए हैं और बने हुए हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में हैं, और ये क्या है? डेड एंड डिकेइंग है। इन डेड और डिकेइंग सोर्सेस पे अगर आपकी फंजाई ग्रो कर रही है और एक छोटे डॉट से अगर वो इस तरह से मैसिव फॉर्म में हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी ग्रोथ हुई। एक छोटा सा स्पोर
एक छोटा सा स्पोर अगर ग्रो करके इस तरह के इतने मैसिव फॉर्म में आ जाता है, इतना मास बना लेता है फंजाई का, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि हमारी फंगस यहाँ पे जर्मिनेट हुई, उसका स्पोर जर्मिनेट हुआ और ग्रो करके उसने इतना मास बना डाला वाइट कॉटनी फंगस माइसीलियम का। तो इसका मतलब दिस इज द ग्रोथ। ओके, सो वी आर हैविंग द बेस्ट 2 एग्जाम्पल्स of the degradation of bread pieces and pickles in nature during the rainy season when the conditions are moist and humid. Okay, so if the fungus is growing on the dead and decaying material like our bread or pickle or even sometime moist clothes that are being discarded somewhere, and we could see the growth of fungus on those discarded clothes, moist clothes as well. And the second category we are having with us parasitic. इसका मतलब ये है कि हम नेचर में कूड़े पे या सड़ती गलती चीज़ों पे हम सैप्रोफिटिक फंजाई को देख सकते हैं। इसके अलावा फंजाई को हम उगता हुआ देख सकते हैं लिविंग एंटाइटी पे। पैरासिटिक फॉर्म में ये क्या कर सकता है, लिविंग एंटाइटी पे ग्रो कर सकता है और वहाँ से अपना ये न्यूट्रिशन ले सकता है। सो व्हेन द फंगस टेक्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग एंटाइटी, देन इन दैट कंडीशन दिस इज नोन एज पैरासिटिक। As a parasite, it may exist either on the plant or the animal or on the human being. Have you seen any example of parasitic form of फंगस? पैरासाइट किसको कहते हैं? पैरासाइट मीन्स कि जब कोई भी एंटाइटी किसी भी लिविंग एंटाइटी पे रहे, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले। तो पैरासाइट के हम लोग बहुत से एग्जांपल्स हैं। हमारे पास बग्स हैं जो हमारे साथ रहते हैं। ये कस्क्यूटा आपने देखा होगा, वो भी एक पैरासाइट है जो हायर प्लांट्स पे ग्रो करता है और पड़ा रहता है, येलोइश ग्रीन कलर का होता है। लेकिन जिस प्लांट पे वो उगता है उसकी ग्रोथ को और उसके फॉर्म को वो चेंज कर देता है, अल्टर कर देता है। लाइकवाइज अगर आपकी फंगस एज अ पैरासाइट ग्रो करती है और किसी लिविंग प्लांट से, एनिमल से या ह्यूमन बीइंग से अगर जो है आप अपना न्यूट्रिशन लेती है, तो इन दैट केस इट इज़ पैरासाइट। पैरासाइट कुछ टॉलरेबल होता है, कुछ आप उसको बेयर कर सकते हो। लेकिन अगर इसका नेक्स्ट जो लिमिट होती है, नेक्स्ट जो इसका लेवल होता है, जिसको हम बोलते हैं पैथोजन, तो दिस पैरासाइट इन मोस्ट ऑफ केसेस इज कन्वर्टेड इनटू पैथोजेंस। Now, what is the difference between parasite and pathogen? Parasite is comparatively bearable. It is somewhat permitted up to a certain extent कि हाँ ठीक है यार, तुम उगे रहो, चलो ठीक है, तुमने हमारा जीना आराम नहीं कर रखा है। As a parasite you could exist either on plant or animal or human being. लेकिन अगर इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे कि कस्क्यूटा पूरे प्लांट को कवर कर लेता है, अगर आपने नेचर में देखा होगा, और फोलिएज जो प्लांट का होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो अल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से उस प्लांट का जिसके ऊपर ये ग्रो करता है पूरा शेप, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। लाइकवाइज अगर आपका पैरासाइट अपनी ग्रोथ को इतना ज़्यादा बढ़ा ले कि वो होस्ट, एक्चुअली ये जिस पे ग्रो करता है दैट वी नो एज होस्ट, तो होस्ट अगर आपका लिविंग है और होस्ट इसको बियर कर ले रहा है, टॉलरेट कर ले रहा है कि चलो ठीक है, हम तो भैया एग्जिस्ट कर रहे हैं, तुम भी हमारे साथ जाने अनजाने, हमारी इच्छा के या बिना इच्छा के रह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दैट केस इट इज़ पैरासाइट। बट व्हेन दिस पैरासाइट इज हैविंग इट्स एक्सेसिव ग्रोथ एंड टॉक्सिसिटी, एंड देन इन दैट केस इट इज़ एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू द पैथोजन। तो क्या आप किसी पैथोजेनिक फंजाई को जानते हैं? ऐसी फंजाई जो कि डिसीज़ कॉज करती हो? यस, ऐसी फंजाई को हम जानते हैं, हमने देखा है। और वो क्या है? आपका बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप कभी गेहूं के खेत में गए हों और वहाँ पे आपने गेहूं की बालियाँ देखी होंगी, तो वहाँ पे ब्लैक रेस्ट डिसीज़ होती है आपकी
वीट की ब्लैक रस्ट डिसीज वीट की होती है। गेहूं की बालियों को पूरा का पूरा बालियां जिसमें आपका ग्रेन उगना चाहिए, गेहूं का वीट ग्रेन्स होनी चाहिए, वो कन्वर्ट हो जाते हैं खोखले रस्टी ब्लैकिश कलर के पाउडरी मास में, एंड दैट डिसीज इज नोन एज ब्लैक रस्ट डिसीज ऑफ वीट. Okay, so that is being just only due to the infection of Puccinia graminis triticide. What is this? This is a pathogenic form of fungus जो कि आपका डिसीज़ कॉज करता है ब्लैक रस्ट डिसीज़, जहाँ पे पूरी की पूरी बाली गेहूं की कन्वर्ट हो जाती है एक ब्लैकिश पाउडरी मास के रूप में, एंड दैट इज ओनली ड्यू टू द पैथोजन Puccinia graminis triticide, and that harms our that crop up to a very very high extent. इतना ज़्यादा पैथोजेनिक है, इतना ज़्यादा हार्मफुल है कि हमारी गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है. इसके अलावा अगर आप कभी शुगर केन फील्ड में गए हो तो वहाँ पे आपको एक अल्कोहलिक स्मेल आती है, और आपकी खड़ी खड़ी जो गन्ने की खेती होती है वो पूरी की पूरी रोटिन मास में कन्वर्ट हो जाती है, और उसका जो स्टेम है वो श्रंकन हो जाता है और एक बैड ओडोर फील होती है. दैट इज़ ड्यू टू कॉलीटोट्राइकम. वो भी हमारा एक फंगस है. तो जब आपका फंगस पैरासिटिक से पैथोजेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो इतना ज़्यादा होस्ट को कवर कर लेता है कि उसके नेचुरल फॉर्म को, उसके ग्रोथ को वो अल्टर कर देता है, उसकी प्रोडक्टिविटी को, क्रॉप यील्ड को वो डिग्रेड कर देता है, डीनेचर कर देता है, अल्टर कर जाता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. तो इन दैट केस इट इज़ पैथोजन. हमारी बॉडी पे भी बहुत सारी ऐसे डिसीजेज होती हैं जो कि इस पैथोजेनिक फंगस की वजह से होती है, और हमको पता भी नहीं चलता कि वो कब हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ, और पुअर हाइजीन की वजह से वो हमारी बॉडी पे एग्जिस्ट करता है. शुरू में पैरासिटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन बाद में बॉडी के एरिया को इतना ज़्यादा कवर कर लेता है आइदर एट द सुपरफिशियल और एट द डीपर लेवल कि वहाँ पे उस केस में वो पैथोजेनिक हो जाता है. एंड इन दैट केस इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग आइदर फॉर अस और फॉर एनिमल्स. और वहाँ पे हमको उसको इराडिकेट करने के लिए, उसको हटाने के लिए हमको डिफरेंट मेडिसिन्स लेनी होती हैं उसका क्योर करने के लिए, लाइक रिंग वॉर्म एंड आवर कॉमन डैंड्रफ व्हाट वी आर हैविंग एट आवर स्कैल्प. कुड यू इमेजिन कि आप पूरी भीड़ में खड़े हैं और आप अपने सर की वजह से इरिटेट हो रहे हैं ड्यू टू द डैंड्रफ. तो क्या है? दैट इज ऑल्सो ड्यू टू अ पैथोजेनिक फंगस इन ऑन आवर स्कल. Sorry, the third category of the fungi with us we are having the symbiotic. Sorry, symbiotic means साथ में, biotic means किसी भी लिविंग बीइंग के साथ रहना. तो पहली कैटेगरी हो गई सैप्रोफिटिक की, दूसरी हो गई पैरासिटिक की, थर्ड वन इज सिम्बायोटिक. क्या आप सिम्बायोटिक का कोई एग्जाम्पल जानते हैं जहाँ पे फंगस किसी दूसरे लिविंग एंटाइटी के साथ ग्रो करती हो और रहती हो? द बेस्ट एग्जाम्पल इज अवर लाइकेन. लाइकेन और क्या? सॉरी, माइकोराइजा. लाइकेन क्या है? When we talk about the lichen, actually any lichen somatic body is made up of algae plus fungi. algae lichen कुछ मसाले लाइकेन के होते हैं जहाँ पे हम लोग अपने किचन में यूज़ करते हैं, धूप में यूज़ होता है, मेडिसिन्स में यूज़ होता है. कहाँ पे देखने को मिलता है? लाइकेन ये कहा जाता है कि दीज आर द पायनियर्स एट अ बैरन लैंड, यानी कोई ऐसी चट्टान, कोई ऐसी पहाड़ी जो थोड़ी थोड़ी आपकी एक्सपोज हुई हो लिविंग बीइंग के लिए, तो वहाँ पे जो लाइकेन होता है वो किसी भी बोटानिकल बॉडी को डेवलप करने के लिए एज अ पायनियर वहाँ पे काम करता है. और वो रॉकी मास पे लाइकेन आप बाद में पढ़ेंगे 3 तरह के होते हैं, क्रस्टोज, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज. तो जो क्रस्टोज लाइकेन होती है वो सिंपलेस्ट होती है, बिल्कुल हल्के से आपके
पेपरी स्ट्रक्चर के रूप में ग्रो करता है और उसके बाद वो फोलियोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसके बाद फ्रूटिकोस के लाइकेंस के फॉर्म में। तो इसका मतलब कि वो एज अ पायोनियर वहाँ पे वर्क करेगा, बिगनिंग करेगा किसी आपकी बॉटेनिकल बॉडी के रूप में, जहाँ पे कि आपका फॉरेस्ट बाद में इन फ्यूचर बन सकता है। तो लाइकेन क्या होता है? दिस इज नथिंग बट दिस इज द एसोसिएशन ऑफ द एल्गी एंड फंजाई in the form of a symbiotic association where both the partners are being benefited with each other. Algae is known as phycobion and fungi is known as mycobion. तो कौन सा रोल ये प्ले करेगा कौन सा रोल ये प्ले करेगा आप बाद में देखेंगे, लेकिन वहाँ पे फंजाई को इससे फ़ायदा मिलेगा और एल्गी को इससे फ़ायदा मिलेगा और अल्टीमेटली इन्होंने एक कलेक्टिव स्ट्रक्चर बनाया होगा दैट वी नो एज लाइकेन एंड दैट इज़ द पायोनियर ऑफ द forest as a pioneer of any forest in future maybe. So coming back with the different category of fungi on the basis of mode of nutrition, ये हमने देखा सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है और सिम्बायोटिक है। सो ये हमने जनरल फंजाई को आज हमने ये देखा कि फंजाई कैसा होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और नेचर में वो माइक्रो लेवल पे हो सकती है कि मैक्रो लेवल पे हो सकती है। और माइक्रो लेवल पे है तो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि हम सिंगल सेल को कहाँ देखेंगे। मैक्रो लेवल पे जहाँ पे कि वो हाइफा मल्टी सेलुलर हो जाता है, यानी मल्टी सेलुलर वो हुआ, फिलामेंटस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो हाइफी माइसिलियम के फॉर्म में उसने खुद को एक मैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और वो मैसिव फॉर्म फंजाई का आपको देखने को मिल सकता है डिफरेंट मॉडिफिकेशन के रूप में। सोमैटिक मॉडिफिकेशन जैसे कि आपकी राइजोमॉर्फ लाइक स्ट्रक्चर या डिफरेंट फ्रक्टिफिकेशन या फ्रूटिंग बॉडी जैसे कि हमने अगैरिकस का देखा, हमने मॉर्शेला का देखा, जहाँ पे आपके सोमैटिक टिश्यूज़ भी हैं और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ भी हैं। इसके अलावा ये हमको नेचर में लोकेशन प्लस नेचर फंजाई का देखने को मिल जाएगा कि किस किस फॉर्म में फंजाई आपकी देखने को मिल सकती है। अब पूरे सीज़न में, पूरे साल में अगर हम ये देखना चाहें कि फंजाई किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस में देखने को मिलेगी, तो फंजाई अपने मॉइस्ट और ह्यूमिड कंडीशन